Hello student, welcome once again in the chapter carbon compound. In the previous video, we deals with the functional group. You know that in the previous video we studied the functional group. There are some functional group, that is the dash OH is the functional group of alcohol, right? Dash COOH is the functional group of carboxylic acid, dash CHO is the functional group of aldehyde, right? And like that we see the functional group of the ether, ester, amine, like that in the previous video. Okay, so I hope you can understand very well the functional group. Now in this video we will study the next portion of this chapter, that is the homologous series. Okay, so homologous series, what do you mean by homologous series? You know that the carbon can form or carbon compound can form a long chain. We deals with that. Carbon compound can form a long chain, right? So that's why the length become change. For example, let's take the example methane CH4, then another is the CH3 that is the ethane, then another example CH3 CH2 CH3. Okay, so such types of the long chain are formed by the carbon, right? यहाँ पे one carbon है, यहाँ पे 2, 3, 4, and in this way the length of the carbon compound will be increases, right? The length of the carbon compound will be increases. Okay, so that's why the carbon can form many more compounds. Okay, now in the previous video we studied some functional group can replace the hydrogen atom from this alkane, right? ये जो अल्केन यहाँ पे है, जैसे ये मीथेन है, इथेन है, ये प्रोपेन है, तो अल्केन में से कुछ फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करने के बाद नए कंपाउंड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं. दैट इज डिपेंड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप. मीन्स फंक्शनल ग्रुप कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम एंड फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड हैविंग अ व्हाट, हैविंग अ large number of the length but having the same functional group. Let's see, for example CH3OH, right? Then CH3, then CH2OH, then CH3 CH2 CH2OH. Okay, then CH3 CH2 CH2 CH2OH. Okay, if you observe this example, what do you see? Look at this. This is the methyl alcohol, this is the ethyl alcohol, propyl alcohol, butyl alcohol. Okay, now here what do you see? Here one hydrogen of this methane can be replaced by the OH group. Yeah, here in this case one hydrogen of the ethane is replaced by the OH group. Here is also one hydrogen from the propane is replaced by the OH. Here is also one hydrogen can be replaced by the OH group. It means that this OH group is a what? Functional group. OH group is a functional group, right? So this is the methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol and the butyl alcohol. Why? Because OH is a alcoholic functional group. Here in this case, which is the functional group? OH is the functional group in this chain. So if you observe this example, what you see? You will see that these compounds having a same properties. These compounds, their properties, their chemical properties somewhat similar, right? Why their properties somewhat similar? Because they having a same functional group, but their chains, but the length of the chain become sequentially increases having the same functional group. क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो कार्बन कंपाउंड की जो चेन है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम की जो चेन है, उनकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, इनमें सेम है. तो ऐसी जो सीरीज है जहाँ पे कार्बन की चेन की जो लेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, बट दे हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, होमोलॉगस सीरीज. सो व्हाट इज आवर टॉपिक? टुडेस टॉपिक इज द होमोलॉगस सीरीज. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द होमोलॉगस सीरीज. सो इट इज द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड और द सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप. Series of carbon compound formed by joining the same functional group
इन प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम। किनके जगह पे, मतलब अल्केन में जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम है उसके जगह पे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जॉइंट होता है, राइट, ऑन द चेन हैविंग सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग लेंथ इज कॉल्ड द होमोलॉगस सीरीज। और वो जो चेन है उसकी लेंथ कैसी है, सीक्वेंशियली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वी हैव सी दैट एग्जांपल, इन दैट एग्जांपल you will see that. So what is the definition of the homologous series? It is the series of compound formed by joining the same functional group. सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब होमोलॉगस सीरीज मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपाउंड की सीरीज है जिसमें कंपाउंड की एक सीरीज फॉर्म होती है, किसको किसके ज्वाइन करके, फंक्शनल ग्रुप को, सेम फंक्शनल ग्रुप। उस सीरीज में वो सीरीज जितने भी कंपाउंड की रहती है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, सेम रहता है। और वो फंक्शनल ग्रुप किसको रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन को, पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके। और सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग लेंथ, और सीरीज में लेंथ कैसी होती है, इंक्रीज होती है, बराबर है। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, होमोलॉगस सीरीज। उसको क्या बोलेंगे हम, होमोलॉगस सीरीज। जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे दिया है, दिस इज द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्कोहल, बराबर है कि नहीं। ये सभी मैंने जो यहाँ पे लिखे, क्या दिख रहा है कि ये इसमें भी OH दिख रहा है, 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 राइट। मतलब क्या है कि यहाँ पे OH क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। देखो चारों कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप है, बराबर है, चारों कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप है। और इस सेम फंक्शनल ग्रुप ने किसको रिप्लेस किया है, पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम को। इनके जो पैरेंट एल्केन है, इस कंपाउंड के जो भी पैरेंट एल्केन है, उस पैरेंट एल्केन में से एक एक हाइड्रोजन को क्या किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है। इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम, दिस OH group is joined to this. And another thing is that, so you will see the increasing order of this chain. So it contain one carbon atom, it contain 2, it contain 3, it contain 4 and so on, right? तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि जो लेंथ है सीरीज की वो भी सीक्वेंशियली क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, 1 by 1 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। ऐसी इस दिस इज कॉल्ड एज द होमोलॉगस सीरीज। और ये जैसे हमने एग्जांपल लिया कि ये किसकी होमोलॉगस सीरीज है, होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्कोहल। इस तरह से होमोलॉगस सीरीज ऑफ द एसिड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। इस तरह से होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्डिहाइड है, बराबर है, होमोलॉगस अल्डिहाइड। देन होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्केन, राइट, होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्कीन, है कि नहीं, बराबर है। तो इस तरह से बहुत सारी होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, फॉर्म हो सकती है। और ये जो होमोलॉगस सीरीज, इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। रिसेंटली जो भी बोर्ड की एग्जाम हुई है उसमें भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। डू यू अंडरस्टैंड द होमोलॉगस सीरीज? इन सिंपल वे, होमोलॉगस सीरीज मीन्स इट इज द व्हाट, कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट लेंथ, है ना। फंक्शनल ग्रुप सेम है, बराबर है कि। अब फंक्शनल ग्रुप सेम है मतलब इट हैविंग इट्स प्रॉपर्टी बिकम सिमिलर, ओके। सो और अच्छी तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप की होमोलॉगस सीरीज किसे कहेंगे कि होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। उसके बाद दूसरा एक पॉइंट, चलो यहाँ पे अभी हम और इसको इलॉबरेट करते हैं कि होमोलॉगस सीरीज मतलब जब हम ये एग्जाम्पल स्टडी करेंगे तो एक हमें पता चल जाएगा कि होमोलॉगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, बराबर है। दूसरी, दे हैविंग सेम जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला बिकम सेम, दे हैविंग सेम जनरल फार्मूला, बराबर है। होमोलॉगस सीरीज में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर सीरीज है, होमोलॉगस सीरीज है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, बराबर है, सेम जनरल ग्रुप रहेगा। उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टी है, दे हैविंग समवॉट और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब उस सीरीज में जितने भी कंपाउंड आएंगे उन सभी की प्रॉपर्टीज क्या दिखेंगे आपको, सिमिलर या सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल ग्रुप, सेम जनरल फार्मूला, राइट, सेम जनरल फार्मूला और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सो एवरी मेंबर इज डिफर बाय द डैश CH2 यूनिट। हर एक मेंबर कौन सी यूनिट से डिफर रहेगा, CH2, बराबर। डैश CH2 यूनिट से वो क्या रहेगा बेटा, डिफर रहेगा। CH2 मतलब मिथिलीन, ये कौन सा ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, CH2 को मिथिलीन ग्रुप। तो हर एक मेंबर में
जो डिफरेंस रहेगा वो किससे रहेगा, CH2 यूनिट से। और एवरी मेंबर सीरीज में जैसे जैसे सीरीज इंक्रीज होती जाएंगी तो एवरी मेंबर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो वो 14 डाल्टन से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बराबर है कि हम ये एग्जाम्पल में देखेंगे कि 14 डाल्टन से वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज होते जाएगा, बराबर है। अब ये इतने पॉइंट, ये पॉइंट आपको जिस कंपाउंड के सीरीज में दिखेंगे इट इज कॉल्ड द होमोलॉगस सीरीज। कैसे पहचानेंगे हम होमोलॉगस सीरीज कि फंक्शनल ग्रुप से सभी मेंबर्स में, उस सीरीज के सभी मेंबर में सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसका उनका जनरल फार्मूला भी क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी एंड दे आर डिफर बाय द डैश CH2 यूनिट्स। और मॉलिक्यूलर मास भी किससे इंक्रीज होगा, 14 डाल्टन से। अब देखो थोड़ा एक एग्जांपल लेके हम इसको थोड़ा देखते हैं। ओके सो जैसे मैंने बताया कि ये पॉइंट सेटिस्फाइड विद डैश CH2 यूनिट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, यही जो मैंने लिखा था वो लिख लेता हूँ मैं, वो आगे जाके भी देखना। CH3OH, उसके बाद मैंने लिया था CH3CH2OH, तीसरा लिया था CH3CH2OH, राइट, चौथा लिया था CH2 अगेन CH2OH। ओके, अब ये गिवन सीरीज बराबर है कि ये होमोलॉगस सीरीज है क्या, तो चलो हम देखते हैं कि ये पॉइंट ये सेटिस्फाइड करती है कि नहीं। अब देखो बेटा कि ये CH3CHOH, सबसे पहला पॉइंट सेम फंक्शनल ग्रुप, देखो OH नाम का सेम फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, बराबर है। दूसरा पॉइंट कि सेम जनरल फार्मूला। अब देखो ये यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप OH जो कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ये किसको रिप्लेस करके अटैच हुआ है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। मतलब पहले ये क्या था, मीथेन होगा, राइट, तो मीथेन में के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन है उसकी जगह पे OH, बराबर है कि नहीं। मीथेन मतलब अल्कोहल, अब अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या है बेटा, मीथेन मतलब अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, राइट, CnH2n+2, बराबर है। ये हो गया बेटा मीथेन का। तो इससे इन द सेम वे अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होगा, अल्कोहल का जनरल फार्मूला देखो CnH2n+1, क्यों, देखो CnH2n+2 था, बराबर है CH4 मतलब अल्केन का। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया है ना, तो एक हाइड्रोजन क्या हो गया, कम, और कौन आ गया उसमें, डैश OH, राइट। तो ये हो गया बेटा जनरल फार्मूला किसका, अल्कोहल का, जनरल फार्मूला ऑफ द अल्कोहल, बराबर है कि नहीं। इसका भी यही रहेगा, इसका भी यही रहेगा, इसका भी, मतलब हैविंग द सेम जनरल फार्मूला। अब ये चारों अल्कोहल ही है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो नियर, सभी की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, सिमिलर है, राइट। उसके बाद द डिफर बाय द सेम CH2 यूनिट से डिफर है, चेक करो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो कितने, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब डिफर एक कार्बन का। हाइड्रोजन का डिफरेंस देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 5 में से 3 गए CH2 डैश CH2। इनको देखो, इन दोनों को कंपेयर करो। अब ये दूसरा मेंबर और तीसरा मेंबर कंपेयर करो, दे आर आल्सो डिफर बाय द डैश CH2 यूनिट, है कि नहीं। देखो चेक करके देखो, यहाँ पे देखो C2H5 है और यहाँ पे C3H7 है, तो ये 2 गए, 3 में से 2 गए, 1 कार्बन, राइट, और हाइड्रोजन कितने, 7, और यहाँ पे कितने, 5, तो 7 - 5 मतलब 2 CH2। यहाँ पे भी ये तीसरा मेंबर चौथे के साथ कंपेयर करो, यू विल सी दैट दे आर आल्सो डिफर बाय द मिथिलीन ग्रुप, है ना। किससे डिफर हो रहे वो, मिथिलीन डैश, मतलब मिथिलीन ग्रुप मतलब CH2 यूनिट से क्या हो रहे हैं, डिफर हो रहे हैं, बराबर है। अब जो मॉलिक्यूलर मास है ये भी 14, अपने हमने बोला है कि कितने डाल्टन से बढ़ता है मॉलिक्यूलर मास, 14 डाल्टन से। सर ये 14 कहाँ से आ गया, 14 डाल्टन, अब 14 डाल्टन कहाँ से आ गया। अब ये हर एक इसमें, ये मेंबर देखो इस सीरीज का, और ये मेंबर देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये मेंबर है ना, मतलब सेकंड मेंबर क्या है, CH2 यूनिट से उससे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे और एक CH2 यूनिट ऐड हो रहा है, यहाँ पे और एक CH2 यूनिट ऐड हो रहा है, बराबर है। अब CH2 यूनिट से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 1 CH2 यूनिट से क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। अब CH2 यूनिट का हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर मास मतलब ये जो कंपाउंड है या ये जो ग्रुप है
है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे CH2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH2 9th में आपने पढ़ा होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस प्लस 2 इंटू, है ना, 2 हाइड्रोजन के एटम है ना, प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, बराबर है। ये ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पे CH2 का मॉलिक्यूलर मास देख रहे हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कितना एटॉमिक मास कार्बन का, यस एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, राइट, प्लस एक ही कार्बन एटम इंटू 1 मतलब 12, प्लस 2 इंटू 2 क्यों लिखा मैंने, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, कार्बन का एक ही है ना, 12 इंटू 1 मतलब 12। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है बेटा, 1, ओके। सो नाउ कैलकुलेट दिस, सो 12 प्लस 2 इट इज 14 डाल्टन, बराबर है। CH2 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना है, 14 डाल्टन। इसीलिए तो हमने बोला है, तो ये जो मतलब होमोलॉगस सीरीज में हर एक मेंबर कितने मॉलिक्यूलर मास से डिफर होता है बेटा, 14 डाल्टन से। समझ में आया क्या। अब ये जो प्रॉपर्टीज है जो सीरीज सेटिस्फाइड करती है उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, होमोलॉगस सीरीज। समझ में आया क्या। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द व्हाट, दिस इज द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्कोहल। क्यों बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज, इसको होमोलॉगस सीरीज क्यों बोलेंगे, बाय द डेफिनेशन दिस सीरीज, एवरी मेंबर ऑफ दिस सीरीज हैविंग द सेम जनरल फार्मूला, हैविंग द same functional group, that is OH, and they all are differ by the dash CH2 unit, है ना, मतलब मिथिलीन ग्रुप से यूनिट से वो क्या हो रहा है, डिफर हो रहे, या एक एक यूनिट उसमें क्या हो रहा है, मिथिलीन ग्रुप ऐड हो रहा है, और उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी 14 डाल्टन से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये सभी प्रॉपर्टीज जो भी सीरीज क्या करती है बेटा, शोज करती है, उनको हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, होमोलॉगस सीरीज। ओके, अब ये बहुत सारी होमोलॉगस सीरीज स्टडी करना है, अल्कीन की स्टडी करना है, अल्डिहाइड की है, कीटोन की है, बराबर, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो सभी फंक्शनल ग्रुप जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं उन सभी की होमोलॉगस सीरीज क्या होती है बेटा, फॉर्म होती है। ओके, तो समझ में आएगा आपको होमोलॉगस सीरीज में। इज देयर एनी कंफ्यूजन इन द होमोलॉगस सीरीज? इफ द पर्टिकुलर सीरीज satisfied all these point or it contain all these points, then it is called as the homologous series. तो हमने शॉर्टली ये किसकी होमोलॉगस सीरीज देखी है, अल्कोहल की। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्कोहल, है ना, फर्स्ट 4 मेंबर होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल के पहले 4 मेंबर का नेम लिखो, उनके फार्मूले लिखो, या तो बॉक्स दिया जाता है ना क्वेश्चन में। अभी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इस पे, ऐसे बॉक्स दिया जाता है ना, ऐसा इसमें लिखा रहता है होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, है ना, और ऐसे 4 मेंबर लिखने, फर्स्ट 4 मेंबर, ऐसे बॉक्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि नहीं, फर्स्ट 4 मेंबर, है कि नहीं। तो इसमें आप उनके नाम लिख सकते हो और उसके नीचे क्या लिख सकते हो, उसका पर्टिकुलर फार्मूला भी, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हो। जैसे अल्कोहल का पहला मेंबर है कि नहीं, वो है, इसको मिथेनॉल बोलते हैं IUPAC में, इसको इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, या मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल और ब्यूटिल अल्कोहल। ये जो नाम है ये कॉमन नेम है। और ये जो मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, दीज आर द IUPAC नेम। अब नेक्स्ट हमारा पोर्शन है कि नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर कंपाउंड को नाम कैसे दिए जाते हैं, अंडरस्टैंड। तो इसमें फिर फर्स्ट 4 मेंबर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका CH3OH, यहाँ पे है ना CH3CH2OH, राइट। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में। इस साल भी जो रिसेंटली एग्जाम हुए वहाँ पे इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बराबर है। अब आपकी किताब में 3 होमोलॉगस सीरीज दी है, वो हम देख लेंगे कौन सी 3 होमोलॉगस सीरीज है। एक पहली होमोलॉगस सीरीज है बेटा अल्केन की, राइट, और दूसरी दी है अल्कोहल की जो कि हमने स्टडी की है, और तीसरी दी है बेटा होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्कीन। तो ये देखो एक बार उसको रिवाइज करके देखते हैं हम, मतलब होमोलॉगस सीरीज, उससे भी हम चेक करते हैं। जैसे मैंने अल्कोहल का आपको समझा के बताया, तो अभी ये अल्केन और कौन सा अल्कीन का देखते हैं, है ना। पहला दिया है आपकी किताब में होमोलॉगस सीरीज ऑफ व्हाट, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन, राइट। क्या है जनरल फार्मूला अल्केन का, अभी पढ़ा हमने CnH2n+2, है ना, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। ओके, तो सबसे पहला अल्केन आप, चलो यहाँ पे नेम
आपकी किताब में है, बराबर है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला दूसरा एक ड्रॉ करके हम देखते हैं सीरीज, है ना। उसके बाद कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट, स्ट्रक्चरल फार्मूला, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद नंबर ऑफ CH2 यूनिट, नंबर ऑफ व्हाट, CH2 मतलब मिथिलीन यूनिट, बराबर है। और लास्ट में दिया है बेटा, आप देख सकते हो चार्ट में बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे हम चार्ट बना सकते हैं, ऑलरेडी आपके किताब में ये चार्ट बना के दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, है ना, ठीक है। तो एक हम देखते हैं कि हम होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन देख रहे हैं बेटा, है ना, होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्केन। सबसे पहला मेंबर है अल्केन का, आपको पता है मीथेन। कौन सा मेंबर है अल्केन का सबसे पहला, मीथेन, बराबर है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है रे, CH4, आपको पता है। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बनेगा इसका, वही वो भी CH4। नंबर ऑफ कार्बन एटम, चलो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसमें, 1 दिख रहा है, हाँ। CH2 यूनिट कितने इसमें, CH2 यूनिट इट इज 1 एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया आपको 162, राइट, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा मेंबर है तुम्हारा इथेन, पता है सबको। क्या देख रहे हैं बेटा हम, होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्केन, जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, हमने पढ़ा है। अब इथेन का क्या है फार्मूला, C2H6। अब कंडेंस CH3 कितने कार्बन, 2, मिथिलीन ग्रुप 2, ये बॉइलिंग पॉइंट 88.5, ओके। तीसरा मेंबर देखते हैं हम, वो है बेटा प्रोपेन, तीसरा मेंबर है प्रोपेन, जिसका जनरल फार्मूला है C3H8, बराबर है। आपने सभी ने स्ट्रक्चर बनाए, कंडेंस फार्मूला CH3 CH2 CH3, एम आई राइट। कितने कार्बन एटम है, 3, CH2 यूनिट 3, बॉइलिंग पॉइंट -42, ओके। चौथा मेंबर देखते हैं हम, ब्यूटेन, राइट, अल्केन का चौथा मेंबर है ब्यूटेन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3 CH2 और CH3, राइट। कितने कार्बन एटम है, 4, राइट। CH2 यूनिट कितने, 4, बॉइलिंग पॉइंट 0, ओके। उसके बाद पांचवा मेंबर देखते हैं पेंटेन। 10 मेंबर हमने देखे अल्केन के और अल्काइन के, 10 मेंबर मैंने पढ़ा है, मतलब पढ़ा है आपको बनाने के, आपने आई होप आपने ये स्ट्रक्चर भी बनाए होंगे। पेंटेन C5H12, कंडेंस फार्मूला CH3 CH2 CH3, बराबर है कि नहीं, हाँ चलो। उसके बाद 5, यहाँ पे भी 5, बॉइलिंग पॉइंट 36, ओके। उसके बाद 6th मेंबर है हेक्सेन, कौन सा है, अल्केन का 6th मेंबर हेक्सेन, क्या है बेटा, C6H14। चलो इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं, CH3, है ना, ठीक है, CH2 है ना, बॉन्ड है इसमें, ये राइट, डैश CH2 कितने हो गए, 5, और ये CH3 6 कार्बन, राइट, इसमें CH2 यूनिट 6 और ये 69, राइट। अब ये देखो बेटा, ये चार्ट आपकी किताब में है। सो ये जो मैंने यहाँ पे चार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है वो किसका है, होमोलॉगस सीरीज ऑफ द व्हाट, अल्केन। किसकी होमोलॉगस सीरीज है रे, अल्केन की होमोलॉगस सीरीज देख रहे हैं अल्केन की, है ना। तो पहला मेंबर है अल्केन का मीथेन, दूसरा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है ना, C2H6 C3H8 C4H10 है ना, पेंटेन का C5H12 C6H14, ओके। स्ट्रक्चरल फार्मूला CH4 है ना, ये दीज आर द स्ट्रक्चरल फार्मूला इन अ कंडेंस फॉर्म, है ना, कंडेंस फॉर्म में लिखे, राइट। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, हर एक सीरीज के हर एक मेंबर में कितने कार्बन एटम है ना, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, 6 है। नंबर ऑफ CH2 यूनिट है कि नहीं, नंबर ऑफ CH2 यूनिट, इसमें एक CH2 यूनिट है, इसमें दूसरा, इसमें 2 3 है, इसमें 4 है कि नहीं, इसमें 5 है, इसमें 6 CH2 यूनिट। अब लास्ट कॉलम में बॉइलिंग पॉइंट दिया है, एक बार आप देख लो कि बॉइलिंग पॉइंट आप ऑब्जर्व करो क्या दिख रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, है ना। होमोलॉगस सीरीज में ये बॉइलिंग पॉइंट का भी एक मतलब प्रॉपर्टीज है कि नहीं। क्या दिख रहा है आपको, एक ग्रेडेशन दिख रहा है,
कि बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या दिख रहा है, इंक्रीज होते दिख रहा है, देखो है ना, -162 देन -80 राइट 0। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। तो ये भी एक पॉइंट रह सकता है कि इन द होमोलॉगस सीरीज द बॉइलिंग पॉइंट इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, है ना, बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। मतलब जो फिजिकल ट्रेंड है उसमें भी क्या दिख रहा है बेटा, हमें होमोलॉगस सीरीज में ग्रेडेशन दिख रहा है, ये भी पॉइंट हो सकता है, बराबर नहीं। चलो ये होमोलॉगस सीरीज है, दिस इज द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्केन। अब ये कैसे है, तो जैसे इनका जनरल फार्मूला देखो, सभी का क्या है बेटा, CnH2n है ना, हैविंग सेम जनरल फार्मूला CnH2n +2 बराबर है। अब अल्केन है, अल्केन मतलब दे हैविंग अ सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है राइट। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है बिकॉज ये सीरीज हमने पैरेंट अल्केन की देखी है, बराबर है। समवॉट सभी मेंबर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है बेटा, सिमिलर है, बराबर है कि नहीं। अब दे ऑल आर, एवरी मेंबर इज डिफर बाय द डैश CH2 यूनिट, हर एक मेंबर डैश CH2 यूनिट से डिफर हो रहा है। जैसे हम इसमें देखते हैं है ना, ये 2 और ये 1 मतलब डैश CH2, इनको इसको और इसको कंपेयर करोगे आप, डैश CH2, इसको कंपेयर करो CH2, इसको कंपेयर करो CH2, इसको कंपेयर करो CH2 यूनिट, है कि नहीं। हर एक मेंबर में एक CH2 यूनिट क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है। मतलब द सेकंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर इज डिफर बाय द 1 CH2 यूनिट एंड थर्ड मेंबर इज डिफर बाय, है ना, फर्स्ट सेकंड मेंबर इज डिफर फ्रॉम द थर्ड मेंबर बाय द CH2 यूनिट। मतलब दोनों में जैसे जैसे हम सीरीज में जाएंगे वैसे वैसे एक एक मेंबर किससे डिफर हो रहा है, 1 CH2 यूनिट से क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है। मतलब नंबर ऑफ CH2 यूनिट भी क्या हो रहा है, सीरीज में इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो दिस इज द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्केन। क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा सकता है कि राइट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द, राइट, मतलब फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्केन। तो आप पहले 4 लिख सकते हो, है ना, बराबर है। फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्केन सब बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको इस तरह से लिखना है। मतलब इस तरह से लिखने की वजह भी क्वेश्चन तो अभी वो चार्ट के फॉर्म में भी आ सकता है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि बॉक्स रह सकता है, ये रह सकता है। ओके, उसके बाद अल्कोहल का हमने देखा जो आपकी किताब में है। उसके बाद एक बेटा अल्कीन का देख लेते हैं, अल्कीन का होमोलॉगस सीरीज देख लेते हैं। ओके, तो होमोलॉगस सीरीज ऑफ द क्या देखेंगे हम, अल्कीन, राइट। तो चलो अल्कीन का होमोलॉगस सीरीज एक बार देख लेते हैं। अल्कोहल का है आपकी इसमें, बराबर है। अब देखेंगे हम अल्कीन का, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज ऑफ द व्हाट, होमोलॉगस सीरीज ऑफ द, यस, अल्कीन। जनरल फार्मूला अल्कीन का क्या है, जनरल फार्मूला अल्कीन का, यस, CnH2n, राइट। तो अल्कीन का जनरल फार्मूला है बेटा CnH2n। अब इफ यू सी द जनरल फार्मूला ऑफ द अल्कीन तो आपको पता चल जाता है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के क्वेश्चन है, ब्रेन यूज योर ब्रेन पावर में देखेंगे हम कि कार्बन और हाइड्रोजन में क्या रिलेशन है अल्कीन में, कि कार्बन मतलब यहाँ पे N है और यहाँ पे 2N है, मतलब पर्टिकुलर कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे डबल क्या रहेंगे बेटा, हाइड्रोजन रहेंगे, है ना। तो ये एक आपको मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में रिलेशन है, किसमें, अल्कीन में, वो हमें देखना है। सबसे पहला अल्कीन का मेंबर हम देखते हैं, वो है बेटा अल्कीन का पहला मेंबर। चलो कौन बताएगा, स्ट्रक्चर बनाए हैं हमने, अल्कीन का पहला मेंबर मीथीन। इट इज पॉसिबल, पहला मेंबर अल्कीन और अल्काइन में पॉसिबल नहीं है, मतलब मीथीन इज नॉट पॉसिबल और मीथाइन इज नॉट पॉसिबल, ओके, बिकॉज इट डजंट ओबे द टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो कौन सा पहला हो गया मेंबर, इथीन। पहला मेंबर क्या हो गया बेटा, अल्कीन का इथीन, है ना। चलो अल्केन में हमने मीथेन लिखा था, तो उस तरह से यहाँ पे मीथीन पहला मेंबर रह सकता है क्या, ये क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा कि अल्कीन के फर्स्ट 4 मेंबर लिखो, है ना, फर्स्ट 4 मेंबर के स्ट्रक्चर्स लिखो या फर्स्ट 4 मेंबर के मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखो। तो हम लिखते हैं कि जैसे अल्कीन का आपने पढ़ा होगा उसके हिसाब से, चलो पहला मेंबर मीथीन हो गया, दूसरा है ना मीथेन से शुरुआत होती है ना, तो पहला मेंबर मीथीन होगा, है ना। ऐसा है क्या, नहीं, हमने जब स्ट्रक्चर बनाए है कि नहीं, तो उसमें हमें दिखा है कि अल्कीन में पहला जो स्ट्रक्चर है मीथीन का वो पॉसिबल नहीं है, अल्काइन में भी पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट मेंबर क्या हो गया बेटा, अल्कीन का इथीन, ध्यान में रखो। दूसरा मेंबर है प्रोपीन, राइट। तीसरा मेंबर है ब्यूटीन, चौथा मेंबर है बेटा पेंटीन, है ना। चलो पहले 4 मेंबर देखते हैं हम अल्कीन के, पहला इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। ओके, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा इसका, C2H4,
इसका क्या रहेगा रे C3H6 रिलेशन, है ना, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे उसके डबल रहेंगे ना हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे ब्यूटेन का C4H8, इसका C5H10, नहीं क्या जनरल फार्मूला इसे ही बनाते हैं ना हम, स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर फार्मूला, बराबर है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने हैं उससे डबल हाइड्रोजन एटम रहेंगे। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, हाँ इसका CH2 डैश डबल बॉन्ड हाँ CH, राइट, और ये CH2, बराबर है। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, हाँ इसका CH, हाँ CH2 CH3, यहाँ पे CH3 आएगा, बराबर है, CH3, हाँ यहाँ पे CH3, हाँ CH2, हाँ चलो देख लो एक बार, आप बना के भी देख सकते हो। यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड CH2, ओके, हाँ यहाँ पे CH3, हाँ CH2 राइट, हाँ देन CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा इथीन, ये हो गया प्रोपीन, ब्यूटीन एंड पेंटीन, पहले 4 मेंबर अल्किन के। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, 4 और 5, ओके। अब नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स यहाँ पे 0 है, CH2 यूनिट कितने यहाँ पे 0, यहाँ पे कितने हैं बेटा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। बॉइलिंग पॉइंट एक बार देख लेते हैं, -102, दूसरे का कितना है देखो किताब में है आपके 48, -48, तीसरे का है बेटा -4 पॉइंट, यस -4 व्हाट, सॉरी 6.5 एंड इट इज 30, ओके। और जो कौन सा है तुम्हारा पेंटीन, उसका क्या है 30। इफ यू ऑब्जर्व हियर व्हाट द बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट यू सी, जब आपने बॉइलिंग पॉइंट देखा है क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बराबर है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, राइट। ये देखो -102 -48। अब कोई ऐसे बोल सकता है कि सर आप इंक्रीज बोल रहे हो, यहाँ तो 102 है और यहाँ पे 48 है, तो ये इससे बड़ा कैसे हो गया। आपने नंबर लाइन स्टडी की है मैथमेटिक्स में, निगेटिव जो है ना, निगेटिव में जब हम 0 के तरफ जाते हैं तो वो बढ़ता है कि नहीं, और ये 30, मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, मतलब होमोलॉगस सीरीज में पर्टिकुलर जो कंपाउंड है उनके मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है ना, जैसे जैसे सीरीज क्या होती है इंक्रीज होती है। देखो बेटा, हाँ हमने यहाँ पे चलो चेक करते हैं ये होमोलॉगस सीरीज है कि नहीं। हाँ, पहला है कि उनका जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए, सभी का जनरल फार्मूला सेम है, दैट इज CnH2n, है ना, CnH2n सभी का जनरल फार्मूला सेम है, बराबर है कि नहीं। उसके बाद हाँ फंक्शनल ग्रुप सेम है क्या, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिख नहीं रहा है कि नहीं, लेकिन हमने पढ़ा है कि फंक्शनल ग्रुप ने हमने पढ़ा है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप करके एक्ट हो रहा है, और सभी मेंबर में डबल बॉन्ड है, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप, और सभी अल्केन है सेम फंक्शनल ग्रुप है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है बेटा, सिमिलर है। और एवरी मेंबर इज डिफर बाय द डैश CH2 यूनिट, हर एक मेंबर डैश CH2 यूनिट से क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है, मतलब उनका मॉलिक्यूलर मास भी कितने डाल्टन से बढ़ रहा होगा, 14 डाल्टन से बढ़ रहा है। सो दिस इज द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्किन। ये भी क्वेश्चन में पूछा है, आई थिंक लास्ट एग्जामिनेशन में या उससे पहले, हर साल इस पे क्वेश्चन रहता है ना, मतलब वही बॉक्स फॉर्मेट में रह सकता है कि राइट द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द अल्किन, ओके। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो दिस इज द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्किन। और आपके किताब में अल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज दिया है, जो मैंने आपको स्टडी करके दिया है, मतलब जो हमने पहले लिया था, है ना, बॉक्स फॉर्मेट में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वो सेम ही है, जिसमें अल्कोहल OH डैश OHF सेम फंक्शनल ग्रुप है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है सभी की, है कि नहीं। तो दिस इज अबाउट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द व्हाट अल्केन एंड द अल्किन आर द होमोलॉगस सीरीज, ओके। तो ऐसी बहुत सारी होमोलॉगस सीरीज है, एसिड की रह सकती है, अल्डिहाइड की रह सकती है, कीटोन की रह सकती है। अब ये जो वट एवर द टॉपिक वी टॉट, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस या यूज़ योर ब्रेन पावर आपके इसमें दिए हैं, तो हम वो यूज़ योर ब्रेन पावर देखेंगे, ओके।
किताब में दिया है यूज योर ब्रेन पावर। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब होमोलॉगस सीरीज जो हमने ये पोर्शन अभी पढ़ा है उस पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो बोर्ड पे है ना लिखना वो पॉसिबल नहीं है। तो चलो हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मतलब आपसे ही पूछते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो बाय हाउ मेनी dash CH2 that is methylene unit do the formula of the first two member of the homologous series of the alkane that is methane and ethane differ, राइट। चलो पहला क्वेश्चन किसके बेसिस पे पूछा है बेटा, होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्केन। हमने देखा है अभी रिसेंटली हमने देखा है अल्केन का होमोलॉगस सीरीज। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार देख लो कि बाय हाउ मेनी CH2 यूनिट डू द फार्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द व्हाट अल्केन दैट इज मीथेन एंड इथेन इज डिफर। मतलब अल्केन के ये जो पहला मेंबर है CH2 मीथेन और दूसरा मेंबर है C2H6 इथेन। तो इनका क्वेश्चन है कि कितने CH2 यूनिट से ये पहला मेंबर सेकंड मेंबर से डिफर है, कितने CH2 यूनिट से डिफर है। हमने देखा है यस 1 CH2 यूनिट से। कितने CH2 यूनिट से 1 है ना, दोनों में डिफरेंस कितनी CH2 यूनिट का है बेटा 1। ओके, उसको एक सब क्वेश्चन है। सिमिलरली बाय हाउ मेनी डैश CH2 यूनिट डू द नेबरिंग मेंबर ऑफ द इथेन है ना एंड प्रोपेन C3H8 डिफर फ्रॉम ईच अदर। चलो पहले ये दोनों में कितने CH2 यूनिट का डिफरेंस है ये पूछा है। अब दूसरे केस में क्या पूछा है कि ये इसका और C3H8 है ना, ये हो गया आपका इथेन और ये हो गया प्रोपेन, इसमें कितने CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो इफ यू ऑब्जर्व कितनी CH2 यूनिट का डिफरेंस है बेटा 1 है कि नहीं। हमने होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन देखा है ना। तो एक ही मतलब यहाँ पे भी इन दोनों में भी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है और इन दोनों में भी कितनी CH2 यूनिट का डिफरेंस है बेटा 1। समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखो आपकी किताब में आप वहां से पढ़ सकते हो। हाउ मेनी मिथिलीन यूनिट्स आर एक्स्ट्रा इन द फार्मूला ऑफ फोर्थ मेंबर देन द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्कोहल। चलो हमने अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज देखी है। क्वेश्चन किसके बेस है बेटा, होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्कोहल। तो एक अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज में यहाँ पे शॉर्टली ड्रॉ करता हूँ। CH3OH is the first member, CH3CH2OH is the second member, CH3CH2CH2OH is the third member, CH3CH2CH2CH2-OH is the fourth member। ये पहले चार मेंबर है ना, इसको मिथेनॉल बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, या कॉमन नेम में मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल या ब्यूटिल अल्कोहल, बराबर है। ये अल्कोहल के पहले चार मेंबर है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपको कि हाउ मेनी मिथिलीन यूनिट, वही मिथिलीन यूनिट के है ना इसके बारे में ही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मिथिलीन यूनिट आर एक्स्ट्रा इन द फार्मूला ऑफ फोर्थ मेंबर देन द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्केन। उन्होंने ऐसे पूछा है कि ये फोर्थ मेंबर में थर्ड मेंबर के कंपैरिजन में कितने CH2 यूनिट एक्स्ट्रा है ना, पढ़ा है हमने। क्वेश्चन क्या है कि अल्कोहल के फोर्थ मेंबर में थर्ड यूनिट के कंपैरिजन में कितनी CH2 यूनिट एक्स्ट्रा है, पढ़ा है हमने। यस, दिख ही रहा है, चेन से भी आप पता कर सकते हो है ना। डिफरेंस एक मतलब एक CH2 यूनिट एक्स्ट्रा है ना, डिफरेंस एक का है। कितने मिथिलीन ग्रुप एक्स्ट्रा है बेटा, एक है ना। मतलब यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा आपका 1 मिथिलीन ग्रुप। ओके, समझ में आया दूसरा क्वेश्चन। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मिथिलीन यूनिट आर लेस इन द फार्मूला ऑफ सेकंड मेंबर देन द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्कीन। चलो अभी ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड पूछा है, उन्होंने अल्कीन से रिलेटेड पूछा है। चलो अभी रिसेंटली हमने अल्कीन का होमोलॉगस सीरीज देखा। अल्कीन का होमोलॉगस सीरीज पहला मेंबर था तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा था हाँ चलो बताओ CH3CH और डबल बॉन्ड CH2, राइट। तीसरा मेंबर CH3CH2CH डबल बॉन्ड राइट CH2। चौथा मेंबर CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। ये सीरीज है किसकी,
सेम डबल बॉन्ड है कि नहीं? अल्किन की सीरीज, किसकी सीरीज है? अल्किन की। क्वेश्चन किसके बेसिस पे है बेटा? अल्किन के बेसिस पे। क्या पूछा है इन्होंने क्वेश्चन कि हाउ मेनी मिथिलीन यूनिट आर लेस इन द फार्मूला ऑफ सेकंड मेंबर दैन द थर्ड मेंबर। मतलब ये अल्किन का जो सेकंड और थर्ड मेंबर पे क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा है मिथिलीन यूनिट के बारे में पूछा है कि सेकंड मेंबर में थर्ड मेंबर के कंपैरिजन में कितने मिथिलीन यूनिट लेस है? कितने? 1 है ना, डिफरेंस ही 1 का है ना। इसमें एक मिथिलीन यूनिट ज्यादा है। उनका क्वेश्चन क्या है कि इसमें कितने मिथिलीन यूनिट कम है? 1 मिथिलीन यूनिट कम है। मतलब इसका भी आंसर क्या है बेटा? क्या है? 1 मिथिलीन यूनिट। समझ में आया? सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट इज डिपेंड अपॉन द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्कीन, अल्केन एंड द अल्कोहल। ओके, ये यूज योर ब्रेन पावर में आपको दिए हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी देखो आप नेक्स्ट पेज पे है ना, पेज नंबर 120, वहाँ पे भी एक यूज योर ब्रेन पावर है, वो भी हम देख लेते हैं। क्या है देखो पहला क्वेश्चन कि उन्होंने बोला है कि द टेबल 9.70C शोज द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्कीन। यही मतलब अल्कीन की होमोलॉगस सीरीज आपकी दी है, जिसको 9.17C करके दिया है आपकी किताब में, है ना। उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला है? इंस्पेक्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द मेंबर ऑफ दिस सीरीज, डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने बताया था, जैसे मैंने अल्कीन की होमोलॉगस सीरीज ली है ना, जनरल फार्मूला क्या था बेटा? CnH2n। यही पे बताया। उनका ही सेम क्वेश्चन है कि आपको क्या बोला है उन्होंने कि आप अल्कीन की होमोलॉगस सीरीज क्या करो? ऑब्जर्व करो। उन सभी के मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या करो बेटा? ऑब्जर्व करो। और क्या पूछा है उन्होंने? मॉलिक्यूलर फार्मूले ऑब्जर्व करने के बाद कार्बन और हाइड्रोजन में, मतलब होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन में जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनमें क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन मैंने बताया था। क्या रिलेशन है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन है ना, हर एक सीरीज में दिख रहा है कि हाइड्रोजन कितने दे रहा है? कार्बन के डबल दिख रहे हैं। हाइड्रोजन कार्बन के कितने दिख रहे हैं? डबल, है कि नहीं? चलो, इसमें कार्बन कितने हैं बेटा? 2 और हाइड्रोजन कितने? 4। इसमें कार्बन कितने? इस कंपाउंड में 3। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? हाँ, हाइड्रोजन कितने? 6। यहाँ पे कितने? 4 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10। ओके, सो क्या रिलेशन है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में? कि हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। जनरल फार्मूले से भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये नंबर ऑफ कार्बन से क्या है बेटा? डबल है। बराबर है कि नहीं? सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से बेस पे। इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द अल्कीन इज डिनोटेड बाय n। समझो अल्कीन के नंबर ऑफ, हाँ, अल्कीन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो यदि हम n से डिनोट करते हैं, चलो n से डिनोट करते हैं, है ना। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम आर डिनोटेड बाय द n, म्हणजे Cn, राइट। ओके, तो क्या पूछा है उन्होंने? सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम? मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि हम n से डिनोट करते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? 2n, राइट। क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में अल्कीन में हाइड्रोजन कितने होते हैं? ट्वाइस होते हैं या डबल होते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 2n। व्हाट इज योर आंसर? इट इज 2n। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको दिया है ना। तो व्हाट वुड बी द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्केन, है ना। अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी मेंबर का आपको पूछा है ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ कि वो क्या है बेटा? CnH2n+2। ये सभी, मतलब इफ यू स्टडीड द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्केन, सो इन दैट एवरी मेंबर हैज अ सेम जनरल फार्मूला, दैट इज CnH2n+2, है ना। हर एक मेंबर में जो जनरल फार्मूला रहेगा उनका, वो क्या रहेगा? CnH2n+2। और क्या पूछा है देखो सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ n फॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज। हाँ चलो, मतलब अल्केन की जो भी सीरीज है कि नहीं, क्वेश्चन क्या है? ये अल्केन हो गया। क्या क्वेश्चन है बेटा कि जो होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन हम देखते हैं उनका जनरल फार्मूला सभी मेंबर का क्या है? मैंने अभी बताया कि CnH2n+2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है कि अल्केन के होमोलॉगस सीरीज में जो पहला मेंबर है उसमें
यन की वैल्यू कितनी है, तो उसमें अल्केन की यन की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है ना, पहला मेंबर मीथेन, राइट, बराबर है कि नहीं, और यन की वैल्यू कितनी है वहाँ पे 1 है ना। अल्केन का फर्स्ट मेंबर जो होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन का पहला मेंबर है मीथेन, और विच हैविंग द वैल्यू ऑफ एन इज 1, एन की वैल्यू कितनी है वहाँ पे 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जनरल फार्मूला ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्काइन इज। अब अल्काइन का हमने होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्काइन यहाँ पे देखी नहीं है, फिर भी अल्काइन का जनरल फार्मूला आपको पता है, हमने पढ़ा है, क्या है बेटा, CnH2n - 2, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्काइन। अब क्या पूछा है उन्होंने कि इफ यू सी द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्काइन, राइट, सो व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन हियर। देखो क्या पूछा है कि जनरल फार्मूला समझो अल्काइन का क्या है, ये है। सो राइट डाउन द इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड member by substituting the values 2, 3, 4 respectively for n in this formula। उन्होंने क्या बोला है, ये ऑलरेडी हमने जब मैंने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा है उसमें आपने ये अल्काइन के भी पूरे 10 मेंबर बनाए हैं, है कि नहीं। उनका भी क्वेश्चन यही है कि ये इंस्टेड ऑफ ये जनरल फार्मूला है ना, CnH2n, राइट, रॉन्ग कैसे हो गया, CnH2n ये जनरल फार्मूला है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करो, 3 पुट करो, है ना, 4 पुट करो, और अल्काइन के ऐसे पहले 3 या 4 मेंबर क्या बनाओ, ऐसा उनका बोलना है। जैसे कि फर्स्ट मेंबर कैसे, Cn है तो पहले 2 पुट करेंगे, C2H 2 × 2 - 2 है ना, C2H 4 - 2, सो C2H2 ये पहला मेंबर आ जाएगा, है ना। दूसरा मेंबर इसी तरीके से आ जाएगा, है कि नहीं, n की वैल्यू कितनी 3 पुट करो, सो C3H2 × 3 - 2, राइट, सो C3H 6 - 2 मतलब C3H कितना बेटा 4, है ना, ये दूसरा मेंबर आ जाएगा C3H4, है कि नहीं। इस तरह से तीसरा आ जाएगा C4H6, है ना। तो इस तरह से आपको ये अल्काइन की भी होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स आपको मिल जाएंगे, नहीं क्या, बराबर है। अब फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी केम टू नो दैट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हाट होमोलॉगस सीरीज। अब यहाँ पे हमने जितने भी मेंबर्स देखे है ना, उस मेंबर के माध्यम से हमें ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते जो कि मैंने इस पॉइंट के इनिशियली बताया था। और एक यूज योर ब्रेन पावर है, उसमें के क्वेश्चंस आप देखो, आप घर में सॉल्व कर सकते हो, वो आपके लिए है। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द वेरियस होमोलॉगस सीरीज फॉर्म बाय मेकिंग द यूज ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द टेबल 9.6। आपकी किताब में एक 9 पॉइंट टेबल है ना, उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, है ना, अल्कोहल से लेके कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ईस्टर, अमाइन, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है। उन सभी फंक्शनल ग्रुप के आपको क्या बनाना है, फंक्शनल ग्रुप लेके उनकी होमोलॉगस सीरीज बनाना है, 4-4 मेंबर उनके बनाना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, घर में आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन है, देखो बेटा, जनरल फार्मूला ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्केन इज, यस आपको पता है अल्केन का जनरल फार्मूला होमोलॉगस सीरीज ऑफ द CnH2n + 2। अब क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन पूछा है कि राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द 8th and 12th मेंबर यूजिंग दिस। इसके मदद से आपको उसका 8th मेंबर और 12th मेंबर क्या करना है, बनाना है। सिंपल सी बात है, 8th मेंबर बनाना है तो यूज n = 8, है ना, n की जगह पे कितने पुट करना है 8, सो क्या होगा C8H2 × 8 + 2, सो C8H कितने H, हाँ 16 + 2, सो C8H18, है ना। So this is the 8th member. Similarly, you can put 12 instead of the n = what 12, तो आपको एक 8वां भी मेंबर मिल जाएगा और 12वां भी मेंबर मिल जाएगा। If you know, once you know the general formula, you can find out the any member of the alkane. So this is the use your brain power, है ना, that is depend upon this homologous series, that is depend upon the homologous series, okay। अब इतने सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अभी स्टडी किए, तो इससे हमें पता चलता है कि होमोलॉगस सीरीज मतलब कि इट इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग व्हाट, सेम फंक्शनल ग्रुप, है ना। सब फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम जनरल फार्मूला, है ना, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, एंड दे आर डिफर बाय द व्हाट, मिथिलीन ग्रुप, दे आर डिफर बाय द मिथिलीन ग्रुप, मतलब डैश CH2 यूनिट से वो क्या होते हैं, डिफर होते हैं। और उनका मॉलिक्यूलर जो मास है, मॉलिक्यूलर मास
इज इंक्रीज बाय 14 डाल्टन, है कि नहीं। इतने सारे एग्जाम्पल पढ़ के हमें ऐसे पता चला कि होमोलॉगस सीरीज मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, सेम जनरल फार्मूला रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सभी मेंबर की नियर अबाउट सिमिलर रहती है, और एवरी मेंबर इज डिफर बाय द डैश CS2 यूनिट्स, और मॉलिकुलर मास भी उनका 14 डाल्टन से क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा इसमें, है कि नहीं, जो पहले मैंने बताया नहीं था। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, सभी मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है कि नहीं। सो दिस इज अबाउट द होमोलॉगस सीरीज, राइट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं, है कि नहीं। सो दिस इज द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्केन। रिमेनिंग पोर्शन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।